Very good afternoon to present in the physics live class, and very warm welcome to the all students present in the live class. So today we are going to study about the frame of reference. Okay, so first we'll discuss about the frame of reference. What is basically frame of reference, and then we'll see what is different types of frame of reference. That is your inertial frame of reference and non-inertial frame of reference. After seeing the inertial and non-inertial frame of reference, we'll see how we can just convert non-inertial frame and into inertial frame, and how we used to discriminate and where these Newton's law are applicable. Means in which frame these Newton's law are applicable. We are going to study that. Okay. So coming to frame of reference. So frame of reference means what? When we talk about in which respect we are taking the motion, or we can say means frame of reference, you can say it can be said as a frame of reference can be said as the observer. You can say the from where the observer is seeing the basically motion, then that will be known as your basically your frame of reference. Okay, so you can say the motion of an object, the motion of an object depends on the state of motion of observer. State of motion of observers. Okay, so it is basically with respect to the observers. So we can take one examples like this. The same system can be accelerated with one observer, and the same system can be at rest for another observer. Okay, so it's all up to the observer. Okay, so frame of reference will be said as a means in respect means in the place of frame of reference we can say the observer, means who is seeing that motion. Okay, so we can say the same object seen by different observers, seen by different observer, may be accelerated or rest, and that depends on observer, or you can say फ्रेम ऑफ रेफरेंस. उसी को आप क्या कहते हैं बच्चे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल देते हो, जिसके रेफरेंस में या जिसके रेस्पेक्ट में हम मोशन की बात करते हैं. फ्रेम ऑफ रेफरेंस. So this is basically of two type. Okay, so the validity of Newton's laws of motion depends upon the frame of reference. Okay, from which the state of rest and acceleration of particle is measured. So it is basically frame of reference is of two type. One is your inertial frame of reference. One is your inertial frame of reference. So what is basically this inertial frame of reference? A frame of reference, a frame of reference in which Newton's laws are valid, in which Newton's laws are valid, is called inertial
frame of reference, or you can say in this frame of reference means you can say any frame of reference moving with constant velocity relative to the inertial frame is also inertia. Okay, so this is very important point. Any frame of reference, any frame of reference moving with constant velocity, moving with constant velocity relative to an inertial frame of reference. An inertial frame is also is inertial frame is also a inertial frame of reference. So you can understand by this way बच्चे कि जहां पे न्यूटन्स लॉ का वैलिडेशन होता है या फिर न्यूटन्स लॉ अप्लीकेबल होता है, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम क्या बोल देते हैं बच्चे? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल देते हैं. सो हमने डिफाइन किया हुआ बच्चे, एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी relative to an inertial frame is also a inertial. So you can just understand like this. Suppose अर्थ को जो हम बात करते हैं बच्चे, जो हम अर्थ पे रहते हैं, तो अर्थ इज बेसिकली यू कैन से इट्स an inertial frame of reference. Even it's moving with velocity, but still we are assuming that the earth is an inertial frame of reference. Okay, अगर हम बात कर लेते हैं बच्चे कि ये हम लोग ये कह सकते हैं कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे जो भी न्यूटन्स का लॉ होता है वो अप्लीकेबल होता है. तो सिंपली अगर कहीं पे भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस रहेगा तो हम न्यूटन्स लॉ को हम बोल देंगे कि ये अप्लीकेबल रहेगा. अब नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात करेंगे तो ये कह सकते हैं अ फ्रेम in which the Newton's law of motion are not valid are called as a non-inertial frame of reference. Okay, in a frame where the Newton's law is not valid. Okay, so we can write here, we can write this one by at the next page, non-inertial frame of reference. Non-inertial frame of reference. We can write here a frame in which Newton's laws of motion, Newton's laws of motion is not valid, is called non-inertial frame of reference. Or a very important point, we can say a frame which is accelerated relative to the inertial frame is one contest is bound to be non-inertial in the same contest. Okay, ऐसे समझ लेते हैं बच्चे कि अगर मान लीजिए एक मींस फ्रेम है जो एक्सेलरेट कर रहा है दूसरे इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में, ओके, तो वो हमेशा नॉन इनर्शियल ही कहलाएगा. मींस वी कैन राइट हियर a frame which is accelerated relative to inertial frame
in one context is bound to be non-inertial in the same context. Okay, we can take the examples of this also in the same context. Okay, we can take the example. Okay, how we can take the example? Suppose any object is there. Okay, or you just understand where the Newton's law are applicable. You know well, when there is a constant acceleration, or you can say that if body means acceleration can be zero in two cases. Okay, what are they? That is, velocity will be zero, or there will be the constant velocity. In this case, the Newton's first law will be applicable. Okay, means that is a law of inertia will be applicable, or law of means you can say the inertia of motion will be applicable. When object is moving with constant acceleration, means velocity is just going to increases. So if velocity is just going to be increases, then in that case only the Newton's second law of motion is applicable, means the net force will be acting on that body. ओके तो हम इसमें बच्चे एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात करते हैं तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है उसमें वैलिड नहीं होता है. फॉर दी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज नॉट वैलिड. अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम को, अगर मान लीजिए मैंने कहा नॉन इनर्शियल फ्रेम को बच्चे उसका एक्सेलरेशन विथ रिलेटिव टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लिया जाए तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वैलिड हो जाता है. लेट्स सी इट हाउ इट कैन बी. बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोला हूं बच्चे कि अगर कोई नॉन इनर्शियल फ्रेम है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ reference, in non-inertial frame of reference, the Newton's second law of motion is not valid, but अब देखिए बच्चे ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वैलिड नहीं होता, लेकिन हम लोग वहां पे यूज करते हैं. कैसे यूज करते हैं? सो इफ देयर इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इफ देयर इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस and frame of reference is moving with constant acceleration a naught relative to an inertial frame of reference, inertial frame of reference, then Newton's second law can be used. देखिए बच्चे, सिंपली अगर हम बात करेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम में तो न्यूटन सेकेंड लॉ वहां पे वैलिड नहीं होता है. लेकिन अगर हम बात कर लें कि नॉन इनर्शियल फ्रेम है, अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए नॉट से बॉडी मूव कर रही है रिलेटिव टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, किसी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में, तो इन दैट केस में हम न्यूटन्स लॉ का यूज वहां पे कर सकते हैं. ओके, एक एग्जांपल देख लेते हैं बच्चे कि कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं. तो यहीं पे बच्चे ये कॉन्सेप्ट आता है, सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट आता है. सो सूडो फोर्स देखिए, जैसा इसका नाम है, सूडो फोर्स का मतलब हो गया बच्चे झूठा मूठा फोर्स, है ना. वो फोर्स एक्चुअल में होता नहीं है, बट हमें
उसको यूज करना होता है। तो अब जरा देख लीजिए कैसे सूडो फोर्स को हम लोग यूज करते हैं, इस चीज को जरा समझा जाए और कैसे बेसिकली ये यूज होता है। सपोज अब देखिए बच्चे, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको जरा समझने का प्रयास करिए। अब ये ए नॉट से मूव कर रहा है, ए नॉट से मूव कर रहा है, और यहां पे देखिए, यहां पे एक दूसरा ऑब्जेक्ट है स्मॉल एम मास का, इसके ऊपर रखा हुआ है। अब जरा देखिए स्मॉल, ये यहां पे समझ लीजिए ध्यान से कि अगर मान लीजिए मैंने कहा कि ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर रखा हुआ है एंड दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ एक्सेलरेशन ए नॉट, तो इस पे जो इस ऑब्जेक्ट पे बच्चे और ये दिस ए नॉट इज इन एनर्शियल फ्रेम, क्योंकि ये ग्राउंड पे है, ये पे कहां पे है बच्चे, ये ग्राउंड पे है। तो अगर इसके रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन अगर मतलब हम बात करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को हम यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया बच्चे कि इस पे जो फोर्स लगेगा वो सूडो फोर्स लगेगा और वो पीछे की तरफ लगेगा। दिस इज योर एफ पी एंड दिस एफ पी इज नथिंग बट एम ए नॉट, पीछे की तरफ इस पे फोर्स लगेगा बच्चे। अगर मैंने कह दिया इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं, एफ फोर्स लगा रहे हैं, तो ये कितनी तेजी से एक्सेलरेट करेगा, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं बच्चे एफ माइनस सूडो फोर्स एफ पी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बच्चे ये एग्जांपल आप ऐसे कर सकते हैं कि मान लीजिए बस के ऊपर आप बैठ जाइए, बस कहां चल रही है, ग्राउंड पे चल रही है, ग्राउंड एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है मैंने बताया, और बस के ऊपर आप बैठे हुए हो, तो आप जो हो जाओगे वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाओगे। लेकिन वहां पे अगर आपको आपके ऊपर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज करना है, तो इसका मतलब ये होगा कि आपके ऊपर लगेगा क्या बच्चे, सूडो फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, सूडो फोर्स लगेगा। और वो सूडो फोर्स का अगर हम कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, तो इसका मतलब हम न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि आपके सिलेबस में इतना ज्यादा डिटेल में नहीं है, लेकिन एक एग्जांपल और मैं डिस्कस कर सकता हूं कि अगर मान लीजिए एक एग्जांपल मैं डिस्कस करता हूं, थोड़ा सा इसमें लिखवाऊंगा नहीं, केवल मैं डिस्कशन करूंगा इसको आपको समझने के लिए। सपोज एग्जांपल ले सकते हैं, एक मेटेलिक स्फीयर सस्पेंड किया गया यहां सीलिंग से, एक मेटेलिक स्फीयर सस्पेंड किया गया यहां पे सीलिंग से, और ये कार है मान लीजिए हमारी, और ये ए एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। ये देखिए ए एक्सेलरेशन से ये मूव कर रही है। अब देखिए यहां पे दो पर्सन हैं, एक तो ये हो गया और एक यहां ग्राउंड पे है, क्योंकि ये कार ग्राउंड पे जा रही, तो एक बंदा यहां पे है, एक बंदा अंदर है यहां पे, एक बंदा बाहर है। देख लीजिए जरा, मतलब ये पर्सन ए है, ये पर्सन कौन है, ये बी महोदय है। तो अब आपको पता है कि जब अगर ये बॉब को अगर हम यहां पे अटैच कर देंगे, अगर ये ए एक्सेलरेशन से जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये बॉब कुछ यहां चला आएगा बच्चे, मीन्स ये मोशन कर जाएगा और ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चे, थीटा एंगल हो जाएगा। तो अब देखिए दोनों के नजरिए में अंतर होगा, दोनों के नजरिए में मतलब ये हो गया कि अब यहां देखिए जो ए है, ये है आपका इनर्शियल ऑब्जर्वर, क्योंकि ये रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे है, कहां पे है बच्चे, रेस्ट पे है, तो ये क्या हो जाएगा, इनर्शियल ऑब्जर्वर, इनर्शियल ऑब्जर्वर। तो मतलब इसके रेस्पेक्ट में जब मोशन की बात किया जाएगा या फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो बात किया जाएगा, ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। और जो बी हो जाएगा बच्चे, ये बी, क्योंकि ये डायरेक्ट अर्थ पे नहीं है, ये ए एक्सेलरेशन से ये बॉडी जा रही है उस पे ये है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर, नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर। तो यहां से ये बच्चे दिमाग में आपके बैठना चाहिए कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते थे वो कुछ नहीं है, वो ऑब्जर्वर है बस। अगर ऑब्जर्वर रेस्ट पे है या इनर्शियल फ्रेम पे है, तो वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाएगा। अगर ऑब्जर्वर कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे है ना, तो वो क्या क्या कहलाएगा, नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर कहलाएगा। ओके, तो अब देखिए दोनों इस मोशन को कैसे देखेंगे, और दोनों मोशन को देखेंगे और एक ही चीज देखेंगे बट एक्सप्लेन अलग अलग करेंगे। जैसे एक बच्चे सिंपल सी मैं बात करूं कि आप लोग ने स्टोरी पढ़ी होगी बच्चे, 7 ब्लाइंड पर्सन की, दे यूज टू सी दी एलिफेंट, वो हाथी देखने जाते हैं
और 7 वो अपने अपने तरीके से बताते हैं। लेकिन अगर उन सातों को कंबाइन किया जाए तो एक जो विजिबल मैन होगा वो बता देगा कि यहाँ ये दे आर मीन्स ट्राइंग टू एक्सप्लेन दी फिगर ऑफ द एलिफेंट, है ना। तो सेम इसी तरीके से है बच्चे की जो रेस्ट पे इनिशियल ऑब्जर्वर है, इसमें इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वैलिड रहेगा। लेकिन जो नॉन इनर्शियल के केस में देखेंगे तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन डायरेक्टली वैलिड नहीं रहेगा। लेकिन अगर सूडो फोर्स को अगर हम इंक्लूड कर देंगे तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। तो अब देखिए बच्चे यहां पे मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू ए क्या देखता है बच्चे, अकॉर्डिंग टू ए जो ऑब्जर्व करता है, इसको जरा समझा जाए बच्चे। ए जब ऑब्जर्व करेगा तो ये देखिए, ये आपका मीन्स कह सकते हैं कि ये ऐसे आया हुआ है, मास जो है सस्पेंडेड है। अब यहां देखा जाए बच्चे, अगर ये सस्पेंडेड है यहां से देखिए, ये अगर मान लीजिए मैंने कह दिया बच्चे ये एंगल थीटा बन रहा है और इधर क्या हो गया, टेंशन टी हो गया, तो टी का एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा बच्चे जो कि क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा, और इधर एक कंपोनेंट हो जाएगा बच्चे उसको कह देंगे क्या, टी साइन थीटा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चे एम जी नीचे की तरफ जाएगा ही जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा जो टी साइन थीटा होगा बच्चे, दिस टी साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा बच्चे, टी साइन थीटा विल बी इक्वल टू एम ए, क्योंकि ये ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है, जो ए देख रहा है, ए जो देख रहा है ये, और टी कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा बच्चे, दिस विल बी योर एम जी, और दोनों को अगर हम डिवाइड कर देंगे बच्चे तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, यू कैन सी a बाई जी। दिस वाज द स्टोरी सीन बाय द ऑब्जर्वर ए विच इज एट रेस्ट। ये देखा। अब देखिए जो बी ऑब्जर्वर है, जो नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर था, वो क्या देख रहा है, उसके अकॉर्डिंग कहानी सुनिए। वो तो कह रहा है भैया कि ये जो कह सकते हैं कि ये आया हुआ है, ये मास जो आया हुआ है ये इसलिए नहीं आया है क्योंकि इस पे लग रहा है सूडो फोर्स। इस पे क्या लग रहा है बच्चे, सूडो फोर्स लग रहा है जो यहां से ये देख रहा है, एंड दिस इज इक्वल टू एम ए। और फिर इसका ये कंपोनेंट करता है कि भाई टेंशन तो यहां लग ही रहा था, लेकिन इस टेंशन का एक कंपोनेंट इधर चला गया, तो ये टेंशन का एक कंपोनेंट इधर चला गया तो ये टी कॉस थीटा हो गया, और टेंशन का दूसरा कंपोनेंट इधर चला गया तो ये टी साइन थीटा हो गया, और नीचे की तरफ क्या हो गया बच्चे, एम जी हो गया। तो इन्होंने ये कहा, इन्होंने सिंपल सा ये कहा, अब ये जो है इसके रेस्पेक्ट में तो रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे होने का मतलब जब बॉडी रेस्ट पे रहती है तो नेट फोर्स क्या लगता है बच्चे, जीरो लगता है। मतलब अकॉर्डिंग टू बी है ये, दिस वाज अकॉर्डिंग टू बी, जो बी देख रहा है। तो अकॉर्डिंग टू बी क्या है, मास एम इज एट रेस्ट, क्योंकि वो भी उसी के साथ एक्सेलरेट कर रहा है बच्चे, इसके रेस्पेक्ट में ये रेस्ट पे है, तो इसका मतलब ये एक्सेलरेट कर रहा है। अब एक्सेलरेट और मतलब रेस्ट पे है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, वी कैन राइट हियर टी साइन थीटा, देखिए टी साइन थीटा माइनस सूडो फोर्स इक्वल टू इसका एक्सेलरेशन भाई इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है, तो मास इनटू जीरो एक्सेलरेशन। सो टी साइन थीटा यहां से हम लिख सकते हैं इक्वल टू एफ पी, एंड एफ पी इक्वल टू क्या बच्चे, एम ए, और ये टी कॉस थीटा माइनस एम जी, ये तो आपका है ही है, टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, और दोनों को फिर से डिवाइड कर देंगे बच्चे, टी टी कैंसिल, यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू ए बाई जी, tan थीटा इक्वल टू ए बाई जी। सो यहां से अब बच्चे ये देखिए ना कितना इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ गया, कितना इंटरेस्टिंग, इसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में ये ए से एक्सेलरेट कर रहा है, और जो बी के रेस्पेक्ट में ये क्या कर रहा है, ये रेस्ट पे है। तो देखिए रिजल्ट दोनों में क्या आ रहा है बच्चे, सेम आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है बच्चे, अगर उसको हमें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को यूज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी यूज टू हैव अ सूडो फोर्स कॉन्सेप्ट। सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट हमें वहां पे क्या करना पड़ेगा बच्चे, लगाना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी को, किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। बात समझ में आई बच्चे? आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, I made very clear to very means I make you very clear to all of you कि मैंने इसमें समझाया है आपको कि कैसे क्या हो रहा है। अब देखिए इसी तरह से सेम क्वेश्चन एक कभी कुशल ने हमसे पूछा हुआ था, तो मैंने कहा बच्चे लेट मी डिस्क्राइब फर्स्ट दी नॉन इनर्शियल फ्रेम एंड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो मैं आपको सारी चीजें बता देता हूं। तो अब देखिए इसमें दो चीजें, दो केसेस होते हैं बच्चे।
अब देखिए टू ब्लॉक सिस्टम का ये क्वेश्चन है, टू ब्लॉक सिस्टम, दो ब्लॉक सिस्टम का ये क्वेश्चन है। एक कॉन्सेप्ट ये है बच्चे कि ये एक वेज है और इस पे एक मास रखा गया है ऐसे। अब ये थोड़ा आपके बियॉन्ड लेवल की चीजें हैं, लेकिन आप समझिए। अब यहां पे देखिए बच्चे, ये ए से एक्सेलरेट कर रहा है और इस पे एफ फोर्स लगाया जा रहा है। इसका मास कैपिटल एम है, इसका मास स्मॉल एम है। और दूसरा देख लीजिए बच्चे, सेकंड इज दिस वन जो कुशल ने पूछा, और यहाँ पे एम मास ये रखा गया है और कैपिटल एम इसका है, और ये ए एक्सेलरेशन से ये इधर जा रहा है और इस पे फोर्स एफ लगाया जा रहा है। तो अब इस केस में जरा रिलेशन हम लोग को देखना है कि ये ए इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो बच्चे अब ये जरा ध्यान से समझिए इस चीज को कि क्या होगा, कैसे होगा और क्यों होगा। तो यहाँ पे बच्चे ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि अब देखिए ये ए से इधर तरफ जा रहा है, तो ये तो आपका ग्राउंड पे है, तो ये भी आपका ग्राउंड पे है। जो नीचे वाला ऑब्जेक्ट है वो ग्राउंड पे है, ऊपर वाला कहाँ पे हो गया, ये इसके ऊपर हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चे कि इस ऑब्जेक्ट पे लगेगा सूडो फोर्स, एंड दिस सूडो फोर्स विल बी लाइक दिस। ये बैक डायरेक्शन में सूडो फोर्स एमए लगेगा, ये सूडो फोर्स लगेगा बच्चे, याद रखिएगा। और यहां पे देख लीजिए बच्चे, अगर इसकी मैं बात करता हूं तो इसको जरा समझिए कि अगर ये एंगल दिया हुआ है, दिस इज एंगल थीटा, और यहां पे देखिए ये क्या हो छिड़के जाएगा। अब देखिए ये एंगल ये भी आपका थीटा हो जाएगा, और यहां पे बच्चे नीचे की तरफ जो आएगा वो mg होगा, और इसका एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा, दिस विल बी योर mg cos थीटा, और इस तरफ जो कंपोनेंट हो जाएगा दिस विल बी योर mg sin थीटा। एंड वन मोर थिंग बच्चे यू हैव टू सी, ये देखिए ये होगा आपका बच्चे क्या, रिएक्शनरी फोर्स। अब रिएक्शनरी फोर्स को जरा देखना है बच्चे, रिएक्शनरी फोर्स का हमें कंपोनेंट करना है। अब जरा देखिए बच्चे, अगर ये एंगल थीटा है तो दिस विल बी आल्सो अ थीटा। तो आप यहां से देख सकते हैं रिएक्शनरी फोर्स का कंपोनेंट इस तरफ जो हो जाएगा वो आर कॉस थीटा हो जाएगा, और इसके जस्ट अपोजिट में कितना हो जाएगा बच्चे, आर साइन थीटा हो जाएगा। तो यहां से बच्चे आप इक्वेट कर सकते हैं, सिंपल सा इक्वेशन आप बना सकते हैं फॉर सॉल्विंग फॉर ए के लिए सॉल्व करने के लिए आप इसके लिए इक्वेशन बना सकते हैं। आपके सामने है, आपके सामने है, आप देख सकते हैं बच्चे कि अगर ये देखिए ये रेस्ट पे है, ये इसमें ये है कि इस तरह से है कि ये स्लाइड नहीं कर पा रहा है, ये इधर जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, बट स्टिल इट्स अनेबल टू स्लाइड। तो आप इसका भी कंपोनेंट देख सकते हैं बच्चे, अगर आपको समझना है तो देखिए, अगर ये थीटा हो गया बच्चे तो दिस विल बी 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये 90 डिग्री यहां से बन रहा है, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया बच्चे। और यहां पे देखिए ये एंगल कितना हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा बच्चे। अगर ये थीटा हो गया तो एमए का इस सूडो फोर्स का एक कंपोनेंट इधर भी होगा, दैट विल बी योर एमए कॉस थीटा। यहां से देखिए ना, इसका इधर कंपोनेंट हो जाएगा और ये दिस विल बी योर एमए कॉस थीटा। तो अगर ये नीचे की तरफ नहीं जा पा रहा है, इट्स ओनली ड्यू टू, क्योंकि नीचे कौन पुल कर रहा है, mg sin थीटा, और ऊपर कौन है, ma cos थीटा। सो यू कैन राइट हियर, यहां पे देखिए बच्चे लिख सकते हैं mg sin थीटा इज जस्ट बैलेंसिंग या बैलेंस्ड बाई ma cos थीटा। जो सूडो फोर्स का एक कंपोनेंट था वो इसको ऐसे बैलेंस कर रहा है, और mm को आप कैंसिल कर देंगे बच्चे, तो यहां पे आपके सामने सीधे सीधे देख लीजिए g sin थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये हो गया क्या a, सो a विल बी योर g tan थीटा हो जाएगा। और फोर्स अब आपके पूछा जाएगा बच्चे, तो फोर्स इक्वल टू यू नो वेल कैपिटल M प्लस स्मॉल m इनटू a। सो a की वैल्यू आप यहां से रख सकते हैं। सो यहां पे देखिए बच्चे, सिंपल हमने सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लिया। अच्छा, सेम इसी तरीके से यहां पे आप देख सकते हैं बच्चे कि अगर ये एक्सेलरेशन इधर की तरफ हो रहा है तो इसका मतलब हो गया बच्चे सूडो फोर्स इस पे इस तरफ लगेगा। This is direction of pseudo force, and if this is angle theta, so we can make the component here also। अब नीचे की तरफ देखिए बच्चे, यहां पे होगा mg, अगर ये देखिए बच्चे ये थीटा हो गया,
तो ये हो गया इधर क्या mg cos थीटा, और इसका एक कंपोनेंट देखिए बच्चे इधर हो जाएगा, दिस विल बी योर mg sin थीटा। अब जरा एक चीज और समझने का प्रयास करिए बच्चे, एंगल समझ लेंगे आप तो काम आपका हो जाएगा। एंगल समझना है आपको, तो एंगल समझने के लिए आपको देखिए अगर ये थीटा है तो दिस विल बी योर 90 माइनस थीटा। अगर 90 माइनस थीटा ये हो गया तो दिस विल बी योर थीटा। अगर ये थीटा हो गया बच्चे तो आप यहां से देख सकते हैं एमए का, और फर्दर वो कर सकते हैं कंपोनेंट। एमए के कंपोनेंट से बेटर है कि आप यहाँ पे देखिए रिएक्शनरी फोर्स भी बच्चे ये लग रहा है, रिएक्शनरी फोर्स किधर लग रहा है, दिस इज एक्टिंग लाइक this is your reactionary force and this angle will be theta। so reactionary force का कंपोनेंट ले ले बच्चे, वो क्या हो जाएगा, इस तरफ अगर देखा जाए तो इस तरफ क्या हो जाएगा r cos थीटा हो जाएगा, और इस तरफ जो हो जाएगा बच्चे वो कितना हो जाएगा r sin थीटा हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इस ब्लॉक को रोकना है बच्चे, इस ब्लॉक को रोकना है यहाँ पे। इस ब्लॉक को रोकने के लिए एमए का भी आप कंपोनेंट आप देख सकते हैं, एमए का कंपोनेंट आप कैसे ले सकते हैं, लेट्स सी इट। इस एमए का कंपोनेंट देखिए सूडो फोर्स मैंने बनाया है बच्चे, इधर बनाया हुआ है, ये है सूडो फोर्स। तो इस एमए का कंपोनेंट अगर आप देखेंगे तो किधर किधर हो सकता है और कौन इसको रोकेगा, यहां से आप देख सकते हैं, यू कैन सी एक एमए का कंपोनेंट अगर इधर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, देखिए एमए इधर है, एमए कॉस थीटा इधर, इसके जस्ट परपेंडिकुलर एमए साइन थीटा इधर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगा बच्चे, यहाँ पे थोड़ा सा अलग आएगा इस रिलेशन को। एक्चुअली इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका a इक्वल टू, बेसिकली इसमें जो आता है g cot थीटा का रिलेशन आता है, a इक्वल टू g cot थीटा का। जैसे यहाँ पे a इक्वल टू g tan थीटा का आया था, यहाँ पे a इक्वल टू g cot थीटा का आता है, और f इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या बच्चे, कैपिटल M स्मॉल m इंटू a, और a की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो f विल बी योर कैपिटल M स्मॉल m, और ये जी कॉट थीटा। अच्छा इसके लिए आप परेशान मत होइएगा, बिकॉज दिस इज योर बियॉन्ड द सिलेबस, दिस इज योर बियॉन्ड द सिलेबस। ये केवल क्वेश्चन आपने पूछा हुआ था कुशल ने, तो मैं उसको एक्सप्लेन करने लगा था। ओके, सो फॉर नाउ व्हाट वी नीड टू डू, हम लोग को क्या करना है बच्चे, अब क्या पढ़ना है, अब हम लोग को जरा पढ़ना है कि कोई अगर ब्लॉक होता है या सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ना है। तो सर्कुलर मोशन के बारे में एक चीज जानते रहिएगा बच्चे, फॉर means doing the circular motion there is one necessary condition, that is that there must be a centripetal force। कोई एक ऐसा फोर्स होना चाहिए, वो क्या करना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करना चाहिए, है ना। आपको पता है बच्चे, कोई भी अगर एटम की बात करते हैं तो एटम में क्या होता है, यहाँ न्यूक्लियस होता है और ये इलेक्ट्रॉन होता है। अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, if this electron revolves around the nucleus, then there is a force of attraction between these electron and nucleus, and due to this force of attraction this used to rotate। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये क्या प्रोवाइड कर रहा है बच्चे, ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। ओके, तो we will be continuing this topic, that is circular motion। ओके, मोशन ऑफ कार ऑन लेवल रोड, मोशन ऑफ कार इन अ बैंक रोड, और ये 2-3 टॉपिक इसमें बचे हुए बच्चे will try to complete। and for your kind information, in your half yearly examination we will be covering only up to the chapter 5। okay, so our syllabus will be limited up to chapter 5। after completing this chapter we'll solve the different numericals। okay, so that's it for today, we'll be connecting tomorrow and we'll discuss further। okay, thank you। Thank you.